Today I welcome you all in the house of the Lord. मैं आज आप सबको खुदावंद के घर में खुशामदीद कहता हूँ। I welcome you all in the kingdom and the family of the Lord. वाह, मैं आप सबको खुदा की बादशाहत में और उसी कलीसिया में खुशामदीद कहता हूँ। You know, this is a house of joy ये खुशी का घर है and not a cemetery. And not a cemetery, not a graveyard. तो कब्रिस्तान नहीं है, ये खुशी का घर है। And when you go to a cemetery, what you hear? जब आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप क्या सुनते हैं? Nothing. कुछ भी नहीं, There is silence. वहाँ पर सिर्फ एक खामोशी। But since we are not in a cemetery, but in the house of the Lord, पर चूंकि हम किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि खुदा के घर में हैं, so let's shout for Lord. On the count of three, we'll say hallelujah as loud as we can. आए हम सब उसके हुजूर में चिल्लाएंगे और मैं 3 तक गिनूंगा और हम सब मिलकर हालेलुया का नारा लगाएंगे, जितना हो सकता है उतना ऊंचे। ठीक है? 1, 2, 3. हालेलुया! Woo! Let's praise and let's clap and praise Lord. Come on. Wow, thank you, Jesus. So today, as a few of know that we are doing a faith series in our youth meetings. और आप में से कुछ हैं जो इस बात को जानते हैं कि हम अपनी यूथ में फेथ सीरीज को कर रहे हैं। And today we are continuing that and we are doing the third part of it. और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसका तीसरा पार्ट करेंगे, Which is you don't need more faith. जो कि है आपको और ईमान नहीं चाहिए। First one was difference between believing and faith. पहला था ईमान रखने में और यकीन करने में फ़र्क, where we learned that without actions faith is dead. जहां हमने इस बात को सीखा कि बगैर अमाल के आपका ईमान मुर्दा है। And on the second part we learned what is faith. और दूसरे में हमने सीखा कि ईमान क्या है। And we came to know from the Bible that faith is actually a law. और हमने इस बात को कलाम में से देखा कि दरअसल ईमान एक कानून है। And the beauty of law is whenever you apply the law you get the same result every time you apply it. और कानून की ये खूबसूरती है कि जब कभी भी आप कानून को कहीं पर भी लगाते हैं, लागू करते हैं, आपको हमेशा एक जैसे ही नताइज मिलते हैं। And it works equally for everyone. और ये सबके लिए एक तरह से ही काम करता है। It's not like it's going to work for Sushil and not for Tavish. और ये ऐसा नहीं है कि वो भाई सुशील के लिए काम करेगा और मेरे लिए काम नहीं करेगा। But it's equal for everyone. ये सबके लिए बराबर है। And today we are on the third part and we will learn about that we don't need more faith. और आज हम तीसरे पार्ट में हैं और आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमें और ईमान की ज़रूरत नहीं है। So let's go to Bible. Let's take out Luke. आए हम कलाम की तरफ चलते हैं Let's और open our Bibles. लूका की and- इंजील निकालेंगे। yeah. Chapter 17. 17वां बाब। Thank you, Lord. Verse 5 and 6. 5वीं और 6वीं आयत। Whoever gets there, shout hallelujah. वाओ। इस बात की मुझे ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग सारे समझ गए। So I'll read it in English and Bhai will translate it. भाई से अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं से उर्दू में पढ़ूंगा। So the apostles said to the Lord, और increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you. इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। Today I want you to turn to your neighbor who is sitting next to you and say, I am here to grow. आए अपने पड़ोसी की तरफ देखें और उससे कहें कि मैं यहाँ पर आया हूँ बढ़ने के लिए। Tell them that I don't know about you, but I am here to grow. उसको देख कर कहें कि मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं आज यहाँ बढ़ने आई हूँ या आया हूँ। You know, we come to church to grow and to know and to become more like Christ.
हम कलीसिया में आते हैं ताकि हम बढ़ें और हम जानें और मसीह की तरह होते जाएं। That's why it is important for us to realize that how important it is for us to grow and to know more and more about Christ. इसीलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें बढ़ें, तरक्की करें और मसीह की तरह होते जाएं। So say after me, I want to grow and I want to know. आए मेरे पीछे कहें कि मैं बढ़ना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं। Amen. And if you have made this decision that you want to grow and you want to know, then my friend, nothing can stop you. और अगर आज आप इस बात का फैसला कर लेते हैं कि मैं जानना चाहती हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। And if you want to know more and you want to grow in godly knowledge and the Bible says about it. और अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं और उसको जानना चाहते हैं तो कलाम उसके बारे में कहता है, when you grow in godly knowledge, grace and peace is multiplied in your life. Open your Bibles. जब आप खुदा की उस नॉलेज में, उस इल्म में बढ़ते जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फजल और इत्मीनान मल्टीप्लाई होता जाता है। Let's open our Bibles, 2 Peter chapter 1 and verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus, and of Jesus our Lord. खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। How many of you want grace today? How many of you want grace in your life? आप में से कितने हैं जो आज अपनी ज़िंदगी में फजल को चाहते हैं? How many of you? कितने हैं? Come on guys, I want grace. I want more grace. मुझे फजल चाहिए, मुझे ज़्यादा फजल चाहिए। So when grace hits your life, or when grace comes upon you, you automatically start living victorious life. और जब फजल आपकी ज़िंदगी में आता है, आप खुद ब खुद ही एक फतहयाबी की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। And people start to see the difference in you. और लोग आपकी ज़िंदगी में उस फर्क को देख पाते हैं। Or I will say it like this. और मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा, that people will notice you, that where it will take you to be 10 years, like if you will save for 10 years and you will get a home, when grace comes in your life, you will get there in 1 year. और लोग इस बात को जानेंगे कि एक चीज़ जो आपने 10 साल में लेनी है, मान लें कि आपने अपना घर 10 साल में लेना है, और फजल के वसीला से वो घर जो आपने 10 साल में लेना है, वो घर आप 1 साल में ले लेंगे। And the same way, और इसी तरह से while we were yet sinners, और जब हम गुनाहगार ही थे, we were not capable, or we were not worthy of that salvation. और हम उस निजात के लायक नहीं थे, We were not able, or we were not worthy that Jesus came down and died for us. और हम इस चीज़ के लायक नहीं थे कि यीशु हमारी खातिर नीचे ज़मीन पर आता और अपनी जान देता। But yet he came and gave his life for us. और फिर भी वो आया और उसने अपनी जान आपके और मेरे लिए दी। The same way, if the grace of God is operating in your life, और इसी तरह से अगर मसीह का फजल आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, whenever people will meet you, और जब कभी भी लोग आपसे मिलेंगे, they will find you developed. वो आपको देखेंगे कि आप बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। They will find you higher वो आपको ऊंचा देखेंगे and higher और ऊंचा देखेंगे and higher और ऊंचा देखेंगे and brighter, और ज़्यादा चमकता हुआ देखेंगे। and the light of Christ will shine through you all. और मसीह की वो रोशनी आपके अंदर से निकलेगी। The Bible is not saying that grace and peace will be multiplied, but little bit of it. बाइबल ये नहीं कहती कि इत्मीनान और फजल थोड़ा सा बढ़ेगा, It is saying that it will be multiplied. और वो ये कह रहा है कि ये बढ़ेगा। You know, the calculator God has. My younger brother Austin says like this. He says, "Bhai, God has a calculator where there is only one button, and that is multiplication." मेरे छोटे भाई ऑस्टिन ने इस बात को किया था कि खुदा के पास सिर्फ खुदा के पास जो कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ एक ही बटन है, और वो बटन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है। And when your grace multiplies, when your peace is multiplied, when your finances are multiplied, or when your health is multiplied, you become like Christ.
और जब आपकी ज़िंदगी में फजल बढ़ता है, इत्मीनान बढ़ता है, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हैं, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो आप दिन ब दिन मसीह की तरह होते जाते हैं। And you know, this is the will of Father for you, और ये बाप की मर्जी है आपके लिए, that He sees you living a victorious life in every area of your life. यस, बाप चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्सा में फतह याबी की ज़िंदगी जिए। And when you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, everything you have multiplies. और जब आप मसीह यीशु की पहचान में बढ़ते जाते हैं, तो जो कुछ भी आपके पास होता है वो सब बढ़ता जाता है। And this knowledge will not come to you by reading more books or reading or listening to more podcasts or whatever. और ये जो पहचान मसीह यीशु की है, ये किताबें पढ़ने से आपको नहीं मिलती, ये ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने से या कुछ और इस तरह की बातें सुनने से नहीं मिलती। But this knowledge will come through the word of God. It is a revelational knowledge which only the Spirit of God can reveal it on you. और ये सब पहचान आपको उसके कलाम को पढ़ने से मिलती है। ये एक मुकाशफाती पहचान है जो आपको उसके कलाम में से मिलती है। Same verse, 2 Peter 1:3. Not 2, we were reading 2, but now we are going to read 3. हम उसी बाब में अब दूसरी आयत नहीं बल्कि तीसरी आयत पढ़ेंगे। It says, as His divine power has given to you, to us, all things that are pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के ज़रिया से बुलाया। Do you believe what Bible is saying is true? How many of you believe? क्या आप ईमान रखते हैं कि बाइबल जो कह रही है वो सच है? How many of you? All of you, right? आप सब तकरीबन। Then you have everything you need to live a life, a worldly and godly life. तो आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आपको इस ज़िंदगी के मुतल्लिक और दीनदारी के मुतल्लिक चाहिए। From God's side, He has given you everything you needed. खुदा की तरफ से उसने वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो दे दिया है। How many things the Bible have mentioned? All things. कितनी चीज़ें हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं? सब चीज़ें। All things you need for godly life or the life you are living here, He has given you already. He has provided that already to you. और वो सब चीज़ें जो आपको ज़िंदगी और दीनदारी के लिए चाहिए, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो हमें दे चुका है। Then why don't we have those things now? तो हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं है? It's not the problem from God. He has given us already. ये खुदा की तरफ से कोई मसला नहीं है, उसने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया। It's the problem about me. I am not receiving it the right way. ये मेरी मुश्किल है, ये मेरी परेशानी है कि मैं उसे वैसे नहीं ले रहा। Because there is only one medium to get those things. और सिर्फ एक ही जरिया है उन सब चीज़ों को लेने का, That is faith. और वो है ईमान। Or my uncle Pastor Fraz says that there is only one currency to buy those things, and that is faith. वाह। तो मेरे चाचू अंकल वादी सरफराज इस बात को कहते हैं कि सिर्फ एक ही करेंसी या रुपया है जिससे आप खरीद सकते हैं वो सब चीज़ें जो है ईमान। So no matter how much you cry in front of God, how much you scream, how much you fast, read Bible or pray, He has given you all things already. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रोजे रखेंगे, कितना खुदा के सामने रोएंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे कि खुदा आपको दे, पर उसने तो आपको सब कुछ पहले ही दे दिया है। But let's shift our lens and see how to receive them. आए अपनी हम आंखों को सही तरफ लेकर आएंगे और इस बात को देखेंगे कि हम कैसे ले सकते हैं। Because so many times people think that maybe I'll pray more, I'll give more, and that is how I'll convince God that maybe He will give me a few blessings. बाज़ औक़ात हमें लगता है कि मैं दुआ ज़्यादा करूँगा, मैं दूंगा ज़्यादा तो शायद मैं खुदा को मना पाऊँगा कि खुदा मुझे और बरकतें दे। Or people say that maybe I need more faith in order to get more from God. और शायद लोगों को ये लगता है कि मुझे शायद और ईमान की ज़रूरत है ताकि मैं खुदा से और ले सकूँ। But the truth is you don't need more faith. पर सच्चाई ये है कि आपको और ईमान की ज़रूरत नहीं है। We need to wake up
हमें जागने की जरूरत है। Turn to your neighbor once again अपने पड़ोसी की तरफ देखें and tell him to wake up. और उसे कहें कि उठ जाओ। Tell him to wake up. If he's really sleepy, then grab his arm and shake him a little और bit. अगर वो वाकई सो रहा है तो उसके हाथ पकड़ें और उसे हिलाएं और उसे कहें उठ जाओ। And turn to your neighbor. Guys, come on. You guys are not doing what I'm saying. आप लोग वो कर नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ। Turn to your neighbor and tell him, wake up. अपने साथी को देखें और कहें उठ जाओ। It's time to wake up. ये वक्त है उठने का। It's time to wake up because the church of Christ is about to rule and reign. वाओ, ये वक्त है उठने का क्योंकि खुदा की कलीसिया उठ खड़ी होगी ताकि हुकूमत करे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And we will live a victorious life in every area of our lives. और हम एक फतेहयाबी की जिंदगी जिएंगे अपनी जिंदगी के हर हिस्सा में। Can you imagine? You go to a college आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि आप एक कॉलेज गए or a university या किसी यूनिवर्सिटी में and you go there and ask them that what is the fee of your bachelor's degree, और आप वहां जाके पूछें कि आप लोग की मास्टर्स डिग्री की फीस कितनी है, and they will tell you that it's 4 lakh or whatever, और वो आपसे कहेंगे 4 लाख है या पता नहीं जितनी भी है, and you give them that amount of money और आप उनको उतना पैसा दें and take the degree home. और अपनी उस डिग्री को घर ले आएं। Can they give you the degree by just paying the fee? क्या वो आपको सिर्फ इसीलिए डिग्री दे देंगे कि आपने पैसे दिए हैं? No, there's a training, there's a process to it, there's a process behind it. नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरा अमल है, एक पूरा काम है कि आप किस तरह से उसे हासिल करेंगे। It is not about money. ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, It is about to train you to become a person in order to live a victorious life. ये इस बारे में है कि आप इस बात को सीख सकें कि किस तरह से मैं एक फतेहयाबी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। You have to go through the trainings, आपको एक मरहले में से गुजरना है, एक प्रोसेस में से गुजरना है। the lectures, आपको वो सारे बातें, वो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, you have to make the assignments. आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको मिलेंगे। So many people of think that if there is a man of God, he's blessed and he has everything you are desired of. और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि यार वो बंदा बाबरकत है, उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो मैंने ख्वाहिश की है। And most of the time you just think that maybe I'll give him 10,000 rupees offering and ask him to lay a hand on me and it will come to me as well. तो हम सोचते हैं कि मैं उसे 10,000 रुपये हदिया दूंगा और उसे कहूँगा कि तू मुझ पर हाथ रख के दुआ कर, तो वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी आ जाएंगी। I believe in impartation, but this is not how it happens. मैं इम्पार्टेशन पर यकीन रखता हूँ, पर ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। Because that man of God has been through so many years of training and trials and he has become like this after so many years. और वो खुदा का खादम वो एक पूरी ट्रेनिंग में से गुजरा है, वो ऐसे ही सब कुछ उसकी ज़िंदगी में नहीं आया, उसने बहुत सारी ट्रायल्स में से गुजरा होगा, बहुत सारी मुश्किलें उसने फेस की होंगी। You are just seeing the result of it, but you don't know the practices, the trainings, the trials behind it. आप सिर्फ उसकी ज़िंदगी के उन नताइज को देख रहे हैं, पर आप इस बात को नहीं देख रहे कि वो खुदा का खादम किस तरह से उन सब प्रॉब्लम्स में से, उन सब ट्रायल्स में से, उन सब ट्रेनिंग में से गुजर कर आया है। And if you surrender to God and you allow Him to work, you can be like Him or maybe even more from Him. और अगर आप अपने आप को खाली करके खुदा के सामने पेश करें तो हो सकता है कि आप उससे भी ज़्यादा बढ़े। This is why I always call church a training center, a training hub. और इसीलिए मैं चर्च को हमेशा एक तैयार होने की एक जगह समझता हूँ और कहता हूँ। If you go to college or university or school, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं and you sit there while they are teaching you, और आप वहाँ बैठे जब वो आपको सिखा रहे हैं, and you are distracted the whole time, और आप सारा वक्त किसी और ध्यान में रहें, you cannot learn. आप सीख नहीं सकते। You cannot learn from there. आप नहीं सीख सकते वहाँ से। There is a process. You have to pay attention over there. What is happening? Why that person is telling me something. वहाँ एक पूरा अमल है जिसमें से आपका गुजरना बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। Maybe you will pass out with that degree, but it will be a piece of paper only. शायद आप वहाँ से निकल जाएं, आप पढ़ के बाहर आ जाएं, पर वो डिग्री आपके लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होगी। Because you didn't grasp what they were teaching over there. क्योंकि आपने उस बात को नहीं पकड़ा जो वो वहाँ पर सिखा रहा था। This is why when you come to church or when you go to your church,
be very attentive. और इसीलिए जब आप यहाँ पर आएँ या अपने चर्च में जाए, जहाँ भी जाए, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपका ध्यान कलाम पर हो। There are only two things you should focus on: सिर्फ दो चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए, the Word and Jesus. खुदा का कलाम और यीशु। Because so many time, or say, because we think that some people have faith, that is why they are living their life, or maybe they are chosen, that's why they have faith in their life. बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि यार वो शख्स चुना हुआ है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी में ईमान है, But that's not true. पर ऐसा नहीं है। Faith is a gift you get when you're born again. वाह! ईमान खुदा की तरफ से तोहफा है जब आप दोबारा से पैदा होते हैं। And if you think that people have more faith and you don't have enough, that's not true. और अगर आपको लगता है कि लोगों के पास ज़्यादा ईमान है और आपके पास नहीं है, ये सच नहीं है। Let's open our Bible again and go to Romans 12. आए कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे और रोमियो 12वें बाब में जाएंगे। Chapter 12 and verse 3. 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत। Whoever gets there first, say hallelujah. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। He has given every man the measure of faith. उसने हर शख्स को एक जैसा ईमान तकसीम किया है, Equally. बराबर। It's not like some people have more and some people have less faith. ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा ईमान और किसी के पास कम ईमान है। When we are born again, जब हम दोबारा पैदा होते हैं, God came to dwell in the spirit and form a seed. तो खुदा आपकी ज़िंदगी में उस बीज की तरह आता है। Let's read first. It says in 1 Peter 1:23. आए दोबारा से हम पहले पत्रस पहले बाब की 23वीं आयत में देखेंगे। It says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। That is the way how Jesus came to this world. और यही वो तरीका था जिसकी वजह से यीशु मसीह दुनिया में आए। Through the power of Holy Spirit, that seed took place into the womb of Mary. और रूह कुद्दस की कुदरत से उस सीड ने, उस बीज ने मरियम की वूम में वो पड़ा। Jesus didn't came to this earth, this world, as a full grown up man. और यीशु मसीह इस दुनिया में एक पूरे आदमी की तरह नहीं आए थे। There was a process. एक पूरा मरहला था। Even though he could have been come in a full grown man. वो आ सकता था अगर चाहता कि वो पूरे का पूरे ऐसा आ सकता था। Come on, he's a God. What is impossible for him? वो खुदा है, उसके लिए क्या नामुमकिन है। But he went through a process. पर वो उस पूरे अमल में से होकर गुजरा। And Jesus said, if you will not understand this parable of seed of mustard, you will not understand any other parables. और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इस राई के दाने की तमसील को नहीं समझते तो तुम बाकी तमसीलों को नहीं समझ पाओगे। If you don't understand the nature of seed, अगर तुम उस बीज की नेचर को नहीं समझ पाओगे, you will never understand why some people are flourishing and some are not. आप इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे कि क्यों दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं और कुछ लोग तरक्की नहीं कर रहे। But why Jesus said that this parable is very important? पर यीशु ने ये क्यों कहा कि ये तमसील बहुत ज़रूरी है? Because when we born again, that seed which is incorruptible is placed in our spirit. और जब यीशु इस बात को कहते हैं तो जब वो गैर फानी तुखम हम में आया तो हम नए सिरे से पैदा हुए। And that seed is word of God. और वो बीज खुदा का कलाम है।
So when God came to dwell in our spirit, तो जब खुदा हमारी रूह में रहने आया, along with that seed, he brought one more thing, उस बीज के साथ वो एक और चीज भी लेकर आया, which is faith. जो था ईमान. And not only a normal faith or a worldly faith, a manly faith. कोई दूसरा तीसरा फेथ नहीं, कोई दुनिया का ईमान नहीं, But God kind of faith. पर खुदा की तरह का ईमान. And God kind of faith is different than the worldly faith. और खुदा की तरह का ईमान फर्क है दुनिया के ईमान से. The very next moment you were born again, this faith was imported in you. जिस वक्त आप नए मखलूक हो जाते हैं, वो ईमान आपके अंदर आ जाता है. But some people are operating in this faith and some are not. और कुछ लोग उस फेथ में चल रहे हैं और कुछ लोग नहीं चल रहे. For example, मिसाल के तौर पे 2 people were given the seed of apple. 2 लोगों को सेब का बीज दिया गया. And that master who gave those seeds, he left. और वो मालिक जिसने वो बीज दिया था वो चला गया. And his vacations were extended. और उसकी छुट्टियां लंबी हो गई. And for 10 years he was not able to come back. और 10 साल तक वो इस काबिल ही नहीं हुआ कि वो वापस आ सके. Maybe he was in Naran Kagan and he find that place very enjoyable. That's why he couldn't came back. शायद वो नारायण का गान में था, उसको उस जगह पर इतना मजा आया, इसलिए उसका दिल ही नहीं चाहा कि वो वापस आए. So when he came back, पर जब वो वापस आया, now he went to the first person. तो वो पहले शख्स के पास गया. And he saw that he planted 10 trees in 10 years. और उसने देखा कि उस शख्स ने 10 साल में 10 दरख्त लगा लिए. And that person who was given the seed, he didn't knew that master is coming back. और वो शख्स जिसने उस बीज को लगाया, उसे नहीं पता था कि मालिक वापस आ रहा है. But when master came, he saw that the man is enjoying apples. He's drinking apple juice and eating apple salad. और जब वो मालिक वापस आया, उसने देखा कि यार ये बंदा तो सही अपने सेबों के साथ मस्तियां कर रहा है, मौजा मार रहा है. वो एप्पल का जूस पी रहा है, एप्पल का सैलेड खा रहा है. And master was happy. और उसका मालिक खुश हुआ. And then he went to the second person. तो मालिक दूसरे बंदे के पास गया. And when he went there, he asked, where are your trees? और जब उस बंदे के पास गया, उसने मालिक ने जाके पूछा कि तेरे दरख्त कहाँ हैं? And he goes like, brother, it was just one seed. What am I able to do it with one seed? भाई वो तो सिर्फ एक बीज था, मैं उसे एक बीज के साथ क्या करता? I need more seed. मुझे और बीज चाहिए. I need more seed. मुझे और बीज चाहिए. How many of you think that he needed more seeds? आप में से कितनों को लगता है कि उसे और बीजों की जरूरत थी? How many of you? आप में से कितने हैं? Come on guys, answer me. बोले. Church, are you alive? कलीसिया, क्या आप जिंदा हो? Come on then answer. How many of you think that he needed more seeds? आप में से कितनों को लगता है कि उसे और बीज चाहिए थे? Because he didn't use one. Why would the master give him more? जब उसने एक ही नहीं इस्तेमाल किया तो मालिक उसे और क्यों देता? Or I think that there is no need to give more because he gave him one and then he has to multiply it. मेरा नहीं ख्याल कि उसे और बीजों की जरूरत थी. जब उसे एक दिया गया था तो उसको चाहिए था कि वो उसको बढ़ाता. In the same way, we don't need more faith. इसी तरह से हमें और ईमान की जरूरत नहीं है. He has given us faith equally to each one of you. इसी तरह से उसने हम सबको बराबर ईमान तकसीम किया है. Now it's up to us. अब ये हम पर है. We have to, should we develop it or should we save it in our pocket, back pocket, which we rarely open. अब ये हम पर है कि हम उसे बढ़ाएं या हम अपनी पिछली जेब में डालें. बहनों की तो नहीं है तो. So we don't need more faith. तो हमें और ईमान की जरूरत नहीं है. We need to practice and exercise the faith we already have. जो ईमान हमारे पास है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है, उसको एक्सरसाइज करना है. You know, the beauty of faith is it starts from little. Yes. ईमान की खूबसूरती ये है कि वो छोटे होते ही काम करना शुरू कर देता है. And you need to develop the faith step by step. और आपको जरूरत है कि आप उस ईमान को दर्जा ब दर्जा अपनी जिंदगी में बढ़ाएं. But how you develop something you don't know you have it or no. पर आप उस चीज को कैसे बढ़ाएंगे कि आपको पता ही नहीं कि वो चीज आपके पास है या नहीं है. Because so many people think that maybe I don't even have faith. बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मेरे पास ईमान है ही नहीं. I was one of them. मैं उनमें से एक था. I used to think that maybe I'll command something, it will not happen, the people will laugh on me.
Yeah, it happens. मैं उनमें से एक था कि मैं सोचता था कि मैं किसी चीज़ को हुक्म दूंगा ऐसा कुछ होगा ही नहीं और But- मुझ पर ऐसा ही है। But faith is proof of unseen things. वाह, पर ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। And Bible says the seed of faith was planted in you the very next moment you were born again. और बाइबल इस बात को कहती है कि ईमान का वो बीज आपके अंदर उसी दिन बो दिया गया था जिस लम्हे आप दोबारा से पैदा हुए थे। And each one of us have faith. और हम में से सबके पास ईमान है। And the faith we have, it's not a logical faith. और जो ईमान हमारे पास है वो कोई लॉजिकल ईमान नहीं है, It's a very special faith ये बहुत खास ईमान है। because it's God kind of faith. वाह, क्योंकि ये खुदा जैसा ईमान है। Amen. आमीन। Turn to your neighbor अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ेंगे, and tell him or her that you have God kind of faith. आपके पास खुदा जैसा ईमान है। I have no one here. नहीं, आप नहीं कह सकते। Amen. Let's go to Luke. No, I'll read it. So in Luke 17, verse 5, when the apostles said to the Lord, increase our faith. When apostles came to Jesus and they were asking him that increase our faith. और जब शागिर्द यीशु के पास आए तो वो उसके पास आकर कह रहे हैं कि उस्ताद हमारे ईमान को बढ़ा। And they were expecting, they might be expecting that Jesus will tell us to go on 40 days fast. Yeah. और वो शायद इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि यीशु ने कहेगा जाओ 40 दिन का रोजा रखो। Or maybe he will tell us to pray more, give more, or maybe to lock the room and pray and pray and pray. शायद वो ये भी सोच रहे हो कि यीशु ने कहेगा कि जाओ दुआ करो, या वो कहेगा जाओ अपने आप को कमरे में बंद कर लो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो। Because this is what a humanly brain can think of when it comes to increase something which is supernatural. क्योंकि ऐसा ही है जो हम इंसानी दिमाग में रहते हुए इस बात को सोचते हैं कि यार ऐसे ही हमें मिल सकता हो। But look at what Jesus is saying over here. आए देखें कि यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं। So the Lord said, if you have faith as a mustard seed. खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता। The church has been so confused by this mustard seed. आजकल कलीसिया इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कि ये राई का दाना क्या है। Because people think that Jesus is talking about little faith. क्योंकि वो इस बारे में सोचते हैं कि यीशु छोटे ईमान की बात कर रहे हैं। But even though if you have little bit of faith, और it चूंकि will आपके not पास profit you because of the perspective you are seeing through. बेशक आपके पास थोड़ा सा भी ईमान है, पर वो आपकी जिंदगी को तब तक फायदा नहीं देगा जब तक आप अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को उसको लेके बदलेंगे नहीं। Because Jesus here is not talking about the quantity or the size of faith. और यीशु यहाँ पर ईमान के वो हमें कितना चाहिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि उसका साइज कितना होगा, But he is talking about the quality of faith. पर वो उसके मयार की बात कर रहे हैं कि बीज का मयार क्या है। Remember this. Mark this if you have Bibles. Mark this. Underline this. अगर आपके पास बाइबल है आप इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं। It says, if you have faith as a mustard seed. अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता। Or remember this phrase. और इस बात को याद रखिएगा। Now let's go to Matthew. आए मत्ती की इंजील की तरफ चलें। Chapter 13 and verse 31. 13वें बाब की 31वीं आयत। Now Jesus told them, और यीशु ने उनसे कहा, if you have the faith of a mustard seed. कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता। Now let's see what Matthew chapter 13 verse 31 says. और अब हम इस बात को देखेंगे कि मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 31वीं आयत में क्या लिखा है। Here we see why specifically about the mustard seed. अब हम इस बात को यहाँ पे जानेंगे कि क्यों राई के दाने की बात हो रही है। Because here Jesus is saying that the kingdom of heaven is like a mustard seed. वाह, यहाँ पे यीशु इस बात को कह रहे हैं कि राई के दाने के बारे में कि वो राई के दाना खुदा की बादशाहत के जैसा है। He is telling people a parable. He is symbolizing it. He is trying to tell people in the parable that if you have faith of a mustard seed, or in short, if you have the kingdom of heaven. और यहाँ पे यीशु उनसे तमसील में बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास वो राई के दाना है, यानी कि वो खुदा की बादशाही है, then you can have a victorious life. तो आप
एक फतहयाबी की जिंदगी जी सकते हैं। Jesus is not talking about the quantity of faith, यीशु इस बारे में बात नहीं करे कि तुम्हारे पास कितना ईमान है। because if it is about the quantity, अगर ये इस बारे में होता कि तुम्हारे पास कितना है, so Jesus would not have rebuked them on the lake when the storm came and they woke up Jesus. और यीशु तो यीशु अपने शागिर्दों को उस झील पर डांटते नहीं कि जब वहां पर तूफान आया और उन्होंने यीशु को उठाया। And Jesus replied, "Oh, you of little faith," और यीशु ने उनसे कहा तुम कम एतकादो, because it's not about little or more faith. पर ये इस बारे में नहीं कि किसी के पास छोटा है किसी के पास बड़ा ईमान है। It's about the kingdom of God. ये खुदा की बादशाहत के बारे में है। He is talking about a different set of faith which world doesn't have. यीशु मसीह उस ईमान के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया नहीं देखती। And in Luke chapter 17 verse 5 and 6, apostles think the same way as we think today. और जब हम इस बात को देखते हैं लूका की इंजील 17वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में, वहां पर भी शागिर्दों ने इसी तरह से सोचा जैसे आज हम सोचते हैं। But Jesus is saying, you don't need more faith. पर यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें और ईमान की जरूरत नहीं है। If you have faith as a mustard seed, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान है, because mustard seed is related, or he's related, it is related to the kingdom of God. क्योंकि राई के दाने की जो तमसील है वो खुदा की बादशाहत के बारे में है। Because it is God kind of faith. क्योंकि ये खुदा की तरह का ईमान है। And you know, the beauty of God kind of faith is whatever you say with that faith, it happens. और खुदा के तरह के ईमान की खूबसूरती ये है कि जो आप उस ईमान से कहते हैं वो होता है। Most of the people, if they are living a life where they are in debt, they go to every pastor and ask them to pray for them. और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स कोई कर्जे में ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो ज़्यादातर खादमों के पास जाता है, उन्हें कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, rather than speaking to the debt itself. इस बजाय इस बात के कि वो खुद अपने उस कर्जे से कहे, with the authority he has in life already. जो उस इख्तियार से जो उसके पास है यीशु मसीह के वसीला। You know, most of the time we become lazy. आपको पता है ज़्यादातर हम लोग लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। We become lazy and we get comfortable with the problem. और हम सुस्त हो जाते हैं और हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। How many of you have siblings? You might have, you know. आप में से कितनों के पास बहन भाई हैं? So if you are laying down in your room, in one room, और अगर आप एक कमरे में लेटे हुए हैं and you call the brother from, you know, other room, और आप अपने दूसरे कमरे से अपने भाई को आवाज दे रहे हैं, and when he comes, और जब वो आए and you ask them to turn off the fan, और आप उसे बुला के कह रहे हैं कि यार पंखा बंद कर दे, he can do it, but it's up to him. वो कर सकता है पर वो उसके ऊपर डिपेंड करता I have done it with Austin so many times. है। मैंने ऐसा बहुत किया ऑस्टिन के साथ। So when you are asking somebody to pray for your problem, और जब आप किसी और को कह रहे हैं कि मेरी मुश्किलों के लिए दुआ करो, it's on the problem or it's on the person, it will happen, it will get solved or no. ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सॉल्व होगी या नहीं होगी। Sir, you have your own part to play. आपके पास अपना एक किरदार है अदा करने के लिए। No one can do it but you. कोई नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं। On the first Sunday of August, I remember I woke up with a stomachache. और अगस्त के पहले इतवार मुझे याद है कि मैं इस तरह से उठा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। And my topic on that Sunday was authority. और उस इतवार मेरा जो मजमून था, अनुमान था, वो था इख्तियार। And that very morning I learned about, or maybe you can say I practiced the authority on myself first. और उस सुबह मैंने अपने उस इख्तियार को प्रैक्टिस किया अपने आप पर। And I woke up with a severe stomachache. और मुझे बड़ी भयानक सी दर्द हो रही थी। And I was worried, maybe I won't be able to preach today. और मैं इस बात को लेके थोड़ा सा परेशान भी था कि शायद मैं आज प्रीच ना कर पाऊँ। And I said I won't tolerate this. मैंने पर इस बात को कहा कि मैं इससे बर्दाश्त नहीं करूँगा। Let me tell you one thing. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। What you tolerate in your life जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करते हैं will start ruling over you. वो चीज़ आपके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देगी। So I stood up. तो मैं खड़ा हो गया। I rebuked the pain. मैंने उस दर्द को डांटा। I told the pain to leave in the name of Jesus. मैंने उस दर्द से कहा कि अभी मुझे यीशु के नाम में छोड़। And on the third time it went. और तीसरी दफ़ा में
वो चली गई। And it was a powerful Sunday. और वो इतवार बहुत पावरफुल था। And I told my body that by the stripes of Jesus, I am healed, I am healed, and I am healed. और मैंने अपने बदन से कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ। Within 5 minutes, barely 5 minutes, the pain left my body. और 5 मिनट के अंदर तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही उस सारे दर्द ने मेरे बदन को छोड़ दिया। So, most of the time when we are children, we don't need to ask my daddy all the time that, Papa, can I get a glass of water? Can I drink a glass of water? Can I drink some cold drink, or any chocolate, any candy? I don't have to ask all the time. और जब हम छोटे होते हैं तो बहुत दफ़ा हमें अपने बाप से पूछने की जरूरत नहीं होती, पापा मैं पानी पी लूँ, पापा मैं चॉकलेट खा लूँ, पापा मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। Because he has given us the authority उसने हमें वैसे ही इख्तियार दिया होता है to do whatever we want. कि हम वो सब कुछ करें जो हमारा दिल चाह रहा है। In the same way, उसी तरह से you don't need to ask Father all the time इसी तरह से आपको बाप से हर दफा कहने की जरूरत नहीं है that, Papa, please take my pain away. बाप प्लीज मेरे दर्द को दूर कर दे, Because he has given you authority already. क्योंकि उसने आपको पहले ही इख्तियार दे दिया है। Please become the children of God today, मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप सब खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं, who have the word of God in their mouth, जिनके पास खुदा का कलाम उनके मुंह में है। not the guilts, हाँ, ना के गिल्ट है, ना के कोई इल्जामात है, not the complaints ना के कोई भी शिकायतें हैं or cuss words, और कोई लानती अल्फाज है, but the word of God. पर खुदा का कलाम है। And there is no mountain और कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं है that will stay in your life. जो आपकी जिंदगी में रह सके। If you will start speaking the word to it, और अगर आप उन पहाड़ों को खुदा का कलाम कहना शुरू कर दें, if you have the word of God in your heart, or your heart is filled with the word of God, there is nothing that can stop you to live a victorious life. अगर आपके दिल में खुदा का कलाम है और आपका दिल खुदा के कलाम से भरा है तो कोई चीज आपको नहीं रोक सकती फतह याबी की जिंदगी गुजारने से। Amen. आमीन। We all have faith. We have learned we all have faith, and equally we are given faith. हमने इस बात को सीखा कि हम सबके पास ईमान है और सबको बराबर ईमान तकसीम किया गया। Some has developed and some has not. किसी ने उस ईमान को बढ़ा लिया और किसी ने नहीं बढ़ाया। But I pray पर मैं ये दुआ करता that हूँ every person who is listening to my voice right now जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं will become a faith giant in Jesus' name. वो ईमान में देव बन जाए यीशु के नाम में। And we will see और हम देखेंगे the impossibilities वो सारी जो नामुमकिनात थे bowing down to their feet. वो सारे नामुमकिनात उनके कदमों में आके झुकेंगे। Amen. आमीन। Let's see Mark 11, आए मरकस 11वां बाब देखें, verse 22 and 23. Let's read 22 only. आए मरकस की इंजील 11वां बाब और उसकी In 22वीं आयत। Aramaic Biblical English translation, it says, Yeshua answered and he said to them, may the faith of God be in you. वाओ, अरामिक बाइबल ट्रांसलेशन में इस बात को लिखा गया है। Yeshua answered, यीशु यानी कि यीशु मसीह इस बात को कहते हैं 11वें बाब की 22वीं आयत and में, he said to them, और उसने उनसे कहा may the faith of God खुदा का ईमान be in you. तुम्हारे अंदर रहे। Why do we have faith of God? आपको पता है कि हमारे पास खुदा का ईमान क्यों है? Because Jesus had faith of God. क्योंकि यीशु के अंदर खुदा का ईमान। And disciples were marveled at that time. They were shocked. और जब शागिर्दों ने इस बात को सुना तो वो हैरान हो गए। And they were, when they saw Jesus doing miracle, और जब उन्होंने जब इस बात को देखा कि यीशु मौजज़ात कर रहा है, when he cursed the fig tree, जब उसने उस अंजीर के दरख्त को लानत दी and it dried up, और वो सूख गया, when he commanded Lazarus to come out, और जब उसने लाजर को हुक्म दिया कि कब्र से बाहर आ, now Jesus here is trying to tell them that the faith I have, you have the same faith. यीशु यहाँ पे उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो ईमान है तुम्हारे पास भी वही ईमान है। You can do what I did. तुम भी वो सब कुछ कर सकते हो जो मैंने किया है। And the Bible says if you believe in Jesus Christ, और बाइबल कहती है कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, you will do the same things as he did, or even greater things. और
बाइबल इस बात को कहती है कि तुम वो सब काम करोगे जो मसीह ने किए, बल्कि उससे भी बड़े काम करोगे। But when they asked Jesus that how did he done these all things, और जब उन्होंने यीशु से पूछा कि तूने ये कैसे सब काम किए, and Jesus whispered and said, there is a secret, और यीशु ने बड़ी धीमी आवाज से उन्हें कहा कि एक राज है, and he said, have faith of God. यीशु ने कहा खुदा का ईमान रखो। And how do we get that faith of God? और हम वो खुदा का ईमान कैसे ले सकते हैं? Anyone? कोई? How can we get that faith of God? हम कैसे वो खुदा का ईमान ले सकते हैं? Come on guys, I just told you. अरे यार, मैंने आपको पहले बताया। By being born again. नए सिरे से पैदा होके। I told you the very next moment we are born again, God gave us His faith. जिस वक्त हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, और उसी वक्त वो खुदा का ईमान हमारे अंदर आ जाता है। Amen. Amen. Faith of God is a DNA. खुदा का ईमान डीएनए है। It can only come in your life when you are born of God. और वो तब ही आपकी जिंदगी में आता है जब आप खुदा से पैदा होते हैं। And how do we get born again? और हम कैसे दोबारा से पैदा होते हैं? Yes. When you believe in Jesus Christ. जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं। When you believe that Jesus is the truth. जब आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि यीशु ही सच है। That when you believe that He is the way. जब आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि वो ही रास्ता है। Not a way, but the way. एक रास्ता नहीं, बल्कि वो ही रास्ता है। He is the truth. वो सच है। Then you become then you live a victorious life. तब आप एक फतह याबी की जिंदगी जीते हैं। Jesus is the only way to Father. और यीशु ही वो वाहिद रास्ता है बाप तक। After you have the faith of God, let's move forward. The second step. अब जब हमारे पास खुदा का ईमान आ गया है, आए आगे बढ़े। दूसरा कदम, Mark 11 verse 23. मरकस की इंजील 11वां बाब 23वीं आई। Guys, trust me, this is the last verse. इस बात पर भरोसा रखें कि ये आखिरी आयत है। For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। When you come to realize that, जब आप इस बात को जान लेते हैं that you have the faith which God has, कि आपके पास वो ईमान है जो खुदा के पास है, the next step is speak. तो दूसरी चीज है बोलें। Speak to the mountain, अपने पहाड़ों से बोलें, and they will remove. और वो आपकी जिंदगी से उखड़ जाएंगे। Amen. आमीन। There are two things I need you to focus on. दो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर गौर करें। Saying and believing in heart. कहना और इस बात पर ईमान रखना अपने दिल में। Just speaking is not enough. सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, You also have to believe in your heart आपको इस बात पर ईमान भी रखना है अपने दिल में, in order to see whatever you're saying come to pass. इस बात को देखने के लिए जो आप बोल रहे हैं। Jesus here is sharing a principle to live a victorious life. यीशु यहाँ पर एक फतह याबी की जिंदगी जीने के लिए एक कानून या एक कोई भी रूल बता रहे हैं, That how we can live a victorious life by the faith of God. कि हम किस तरह से एक फतह याबी की जिंदगी जी सकते हैं खुदा का ईमान रखकर। And if you still have been praying for God to increase your faith, और अगर आप अभी भी दुआ कर रहे हैं खुदा से, खुदा तू मेरे ईमान को बढ़ा, then your prayer will not be answered, my friend. तो मेरे दोस्तों आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा। He has already given you faith. उसने आपको पहले से ही ईमान दे दिया है। Amen. So the last verse, आखिरी आए Romans 10:10. रोमियो 10:10। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession
is made unto salvation. लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। Now, the word salvation here comes from the Greek word sozo. और यहाँ पे जो लफ्ज नजात है वो एक यूनानी लफ्ज सोजो से निकला है, And sozo means deliverance और सोजो का मतलब है रिहाई, from a debt, कर्जे से, from bondage, हर तरह के बंधन से, slavery, गुलामी से, any disease. हर तरह की बीमारी से। So in short, sozo means financial prosperity, peace, or restoration in your life. और मुख्तसर तौर पर सोजो का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में माली तौर पे बढ़ोतरी होगी, आपकी ज़िंदगी में रिहाई आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी और वो सब कुछ आ जाएगा। So the Bible here is saying if you believe in your heart and confess it with your mouth, और बाइबल इस बात को कहती है कि अगर तुम दिल से उसको मानो और अपने मुंह से उसका इकरार करो, then you will have prosperity, restoration, and live a full life in every area of your life. तो आपके अंदर बहाली आ जाएगी, माली तौर पे बढ़ोतरी आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। But majority of people think that coming to church and getting laid hand on their heads, that is what's going to change their situations. और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम चर्च आएंगे, अपने सर पे हाथ रखवाएंगे तो उससे हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। This is not wrong. I'm not saying this is wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, Because it is important for the elders or to your mentors to pray for you. और ये बात ज़रूरी है कि जो आपके बड़े हैं, जो आपको सिखाते हैं कि वो आपके लिए दुआ करें। I'm not saying that you should not come to church and ask them for prayer. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च आए और उनको मना करते हैं कि मेरे लिए सर पे हाथ रख के दुआ ना But करें। I am saying that you have a part to play. पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक किरदार है जो आपने अदा करना है। You have a role to play. आपका एक किरदार है अदा करने के लिए। So, what happens when you come to pastor and pray, ask them to pray and you are not praying at home? और क्या होता है जब आप अपने पादरी से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो और आप खुद घर पे दुआ नहीं करते? Nothing. कुछ नहीं। Nothing will change if you will just come to pastor and tell them to pray, but you are not playing your role. कुछ भी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने खादम से कह रहे हैं और खुद दुआ नहीं कर रहे। I told, I don't know if any of you, Marina was there last Wednesday, and I was telling that Christianity is not magic. और मरीना लास्ट वेडनेसडे पिछले बुध यहाँ पर थी तो मैं ये बात कर रहा था कि मसीहत कोई जादू नहीं है। He has given us instructions to follow. उसने हमें वो सारी बातें बताई हैं जो हमें जिस पर अमल करना है। And if you will follow the instructions, और अगर आप उन सारी बातों को मानेंगे, you will have the same results as the Word of God is talking about. तो आपकी ज़िंदगी में वो सारे नताइज होंगे जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बात कर रही है। If you think you have little faith, अगर आपको लगता है कि आपके पास छोटा ईमान है, develop the faith you have उस ईमान को बढ़ाएं जो आपके पास है। by little things in your life. वो छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी में, Any pain, अगर कोई दर्द है, it can be any pain, any disease, sickness, fever, flu, cough, little things in your life. These are little things. अगर कोई आपके जिस्म में दर्द है, कोई आपको कभी बुखार हो गया है, आपको खांसी है, आपको नज़ला है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। And you know, God kind of faith speaks. और आपको पता है खुदा जैसा ईमान बोलता है, And when it speaks, और जब ये बोलता है, or when it speaks, और ये कब बोलता है, it speaks not in good conditions, not in good situations. और ये जब बोलता है तो ये कोई अच्छे हालात में नहीं बोलता। Anybody can speak in good conditions, good situations. हर अगर हम देखेंगे तो बाकी सब भी बोल सकते हैं अच्छे हालात में। But how many of you can speak in the situations where all the odds are going against you? तो आप में से कितने हैं जो अपनी ज़िंदगी में तब उस कलाम को बोलते हैं जब सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के खिलाफ हो रही होती हैं? Because you know what the God kind faith is? आप इस बात को जानते हैं कि खुदा जैसा ईमान क्या है? Let's see Romans 4:17. वाओ, आए रोमियो 4:17 देखेंगे। As it is written, जैसा कि लिखा है, I have made you a father of many nations in the presence of him who he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया
उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। Hallelujah. This is the definition of faith you guys have. और ये उस ईमान के बारे में है जो ईमान आप सबके पास है। And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, He has given you every blessings in heavenly places which you वाओ, needed. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने आपको हर तरह की बरकतें दे दी हैं आसमानी मकामों में जो जिसकी आपको जरूरत है। All you have to do is speak. आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बोलना है। But the Bible says पर बाइबल कहती है, the death and life is in the control of your tongue. वाओ, पर बाइबल कहती है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। But and I request and my suggestion is to you is मेरी आपसे दरख्वास्त है और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, speak life to yourself today. अपने आप पर जिंदगी बोलें। Amen. I love you and I pray that God bless you. मैं आप सबसे प्यार करता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। Come on, let's